Their life was hedged with petty restrictions. अब यहाँ पे वर्ड hedge ये लेगा hedge around. hedge around की मीनिंग होती है to limit और to restrict. तो यहाँ पे होगा their life was limited or restricted or limited with petty restrictions. With petty restrictions. Next one is what the best one could hope dash was to attract no attention either way. So यहाँ पे hope for आएगा. Hope for की meaning होती है to want something to happen. कि आप कोई चीज चाहते हैं कि कोई चीज हो जाए तो वहां पे होप फॉर आता है. जिस तरह हम कहते हैं होप फॉर बेस्ट, ठीक है, डेली लाइफ में भी यूज करते हैं बिकॉज यू वांट समथिंग बेस्ट हैपेंस इन फ्यूचर. ओके, 103 है the streets were littered with stones and bottles hurled dash the policemen. अब हर्ल्ड के लिए आएगा, आपने यूज किया है एट. सही है. हर्ल्ड एट की मीनिंग होती है टू थ्रो समथिंग वायलेंटली और टू थ्रो समथिंग एट somebody violently that you disagree or that you don't like that one. So at policemen, people threw stones and bottles. When a body is immersed dash a fluid it apparently loses weight. अब immerse लेगा in. सही है. बहुत सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं और चूंकि there are many students so I cannot name right now but I'm going forward. So immersed in होता है. Immersed in की meaning क्या हो जाती है? To put somebody or something into a liquid or water so that it is completely covered. कि पानी में जब कोई चीज जाती है उसका वेट हल्का हो जाता है. तो सही है. तो immersed in आ जाएगा यहाँ पे. immersed in का मीनिंग क्या होगी? As I told you that to put something into a water, into a liquid, so that it is completely covered. Next word is the cabinet was impelled dash extreme measures. The cabinet was impelled to. सही है. बहुत सारे बच्चों ने टू लिखा, कुछ बच्चों ने विद लिखा है. अब impel to की मीनिंग क्या हो जाती है? Force somebody, to urge somebody or something. Okay, next word is the revolutionary leaders implanted dash the peasants the determination to take and own the land on which they worked. अब implant word यहाँ पे क्या लेगा? preposition implant in. implant in का meaning क्या होगी? To fix an idea or attitude firmly in somebody's mind. इन सही है. बहुत सारे बच्चों ने इन लिखा है. ठीक है. implant in. 107 है as there was no train until the late evening he had to impose. यहाँ पे D को माइनस कर दें. he had to impose himself dash his horse for longer than he had intended. अब impose word क्या लेगा यहाँ पे? impose on. okay.
इम्पोज ऑन क्या होता है यहाँ पे? वैसे इम्पोज की देखें मीनिंग होती है कोई चीज किसी पे इम्पोज करना, किसी पे मरना। तो यहाँ पे होगी इम्पोज ऑन मीन्स टू मेक somebody or something accept or be aware of your presence or your idea। 106 का होगा implanted implanted in मीनिंग क्या है? To fix an idea or attitude firmly in somebody's mind। किसी के माइंड में अपना आइडिया या एटीट्यूड फिक्स करना। ठीक है। 108 पे अभी आएंगे हम। All the swimmers have improved on their previous best performance। सही है। बहुत सारे बच्चे ऑन ही लिख रहे हैं, वेरी गुड। इम्प्रूव्ड ऑन। अब इम्प्रूव्ड ऑन की मीनिंग क्या होगी? टू अचीव और प्रोड्यूस समथिंग दैट इज ऑफ बेटर क्वालिटी देन समथिंग एल्स। अब ये इम्प्रूव ऑन की जो है ना, जिस तरह है कोई चीज यहाँ पे है एक लेवल पे इम्प्रूव है, उसको ज्यादा इम्प्रूव करेंगे तो पहले से वो ज्यादा आगे हम जाएंगे, बेटर रिजल्ट विल बी देयर। 109 है द गवर्नमेंट हैज इनकॉर्पोरेटेड डैश द बिल मेनी सजेशंस पुट फॉरवर्ड बाय द अपोजिशन। अब इनकॉर्पोरेट वर्ड क्या लेगा यहाँ पे? इनकॉर्पोरेटेड इन। ओके, अब इनकॉर्पोरेट इन क्या होता है? To include something so that it forms a part of something। कि कोई चीज ऑलरेडी है उसमें आपने कुछ और चीजें इंक्लूड कर दी हैं। द गवर्नमेंट हैज इनकॉर्पोरेट इन द बिल। बिल में कुछ चीजें उन्होंने ऐड की हैं। क्या ऐड की हैं? मेनी सजेशंस गिवन बाय अपोजिशन। तो इनकॉर्पोरेटेड इन आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज Raza was, Raza would indulge in a short sleep in his arm chair। अब indulge in की meaning क्या है? To allow yourself to do something that you like or you become involved in that one। Indulged in। ठीक है, सही है। बहुत सारे बच्चे इन ही लिखा है सब ने तकरीबन। ओके, अगला वर्ड है हमारा, नेक्स्ट preposition is he was profoundly and physically infatuated dash her। infatuated। अब कौन सा वर्ड preposition कौन सा लेगा ये यहाँ पे? infatuated with। अब with हम यूज करेंगे, सही है, सबने with लिखा है। यहाँ infatuated with की मीनिंग हो जाएगी having very strong feelings of love attraction with her। ठीक है, infatuated with है। The whole class was infected with the teacher's enthusiasm for the subject। So infect with होता है यहाँ पे affect with, affected with the teacher's enthusiasm for the subject। 113 is it is reassuring to have friends inquire after you when you are ill। अब inquire after की मीनिंग क्या होगी? To ask for information about somebody especially health। जब कोई बीमार हो जाए वगैरह तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं inquire of, सॉरी inquire after, हेल्थ के बारे में होगा। अच्छा, 112 में है infected with।
इन्फेक्टेड विद मीन्स अफेक्टेड विद, ये सही है। अच्छा, 114 है हमारा, एन अट्रैक्टिव फीचर ऑफ द कोर्स वाज द वे द प्रैक्टिकल वर्क हैड बीन इंटीग्रेटेड डैश द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। अब इंटीग्रेटेड विद लेगा, इंटीग्रेटेड विद क्या होता है, टू कंबाइन टू और मोर थिंग्स टुगेदर। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्शन, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल वर्क हैज बीन इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेट विद लेगा। Nothing must be allowed to interface with our search for the truth. अच्छा, इंटीग्रेटेड के साथ इन भी यूज करते हैं, अगर हम इन यूज करेंगे तो मेरे ख्याल में उसकी मीनिंग डिफरेंट हो जाएगी। एक मिनट में कंफर्म करके बताता हूँ। वैसे एक, जैसे देखें, एक वर्ड के साथ हम डिफरेंट प्रेपोजिशन यूज करते हैं और हर प्रेपोजिशन की मीनिंग डिफरेंट आती है जब उसके साथ मेन वर्ड के साथ लगाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट इन बता रहा है कि कोई चीज जम कर देना, और इंटीग्रेट विद की मीनिंग बता रहा है कोई चीज कंबाइन करना। अच्छा, जम करना, कंबाइन करना। चले, समहाउ यहाँ पे मीनिंग दे रहा है, इंटीग्रेट इन मींस टू कंबाइन, और विद भी कंबाइन दे रहा है। ठीक है, सही है श्याम, यू आर ऑल्सो राइट। तो इंटीग्रेट इन भी आता है, विद भी आता है, बट यहाँ पे जो सूटेबल है वो विद दे रहा, की में भी विद है, और इसकी मीनिंग भी यही है कि टू कंबाइन टू और मोर थिंग्स टुगेदर। चले 115 पे चलते हैं। नथिंग मस्ट बी अलाउड टू इंटरफेस देश आवर सर्च फॉर द ट्रुथ। इंटरफेस विद की भी मीनिंग हो जाएगी टू बी कनेक्टेड विद समथिंग। इंटरफेस विद मीन्स टू बी कनेक्टेड विद समथिंग। My lord, it is obvious that the witness is being intimidated dash remaining silent। intimidated, यहाँ पे intimidated के साथ हम preposition लगाएंगे into। अब यहाँ पे इंटिमिडेट into जब लगाते हैं तो मीनिंग क्या हो जाती है, टू फ्राइटन और थ्रेटन somebody। ठीक है, इंटिमिडेटेड into मीन्स टू फ्राइटन somebody। अच्छा, 117 है, द डायरेक्टर वॉज अवेयर दैट ही वॉज बीइंग intrigued but he had no means of finding out how and by whom। अब 117 में intrigued अगेंस्ट लेगा, intrigued अगेंस्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी, टू सीक्रेटली प्लान विद अदर पीपल टू हार्म somebody। intrigued with means to secretly plan, कि कोई प्लान कर देना सीक्रेटली टू हार्म somebody, तो intrigued अगेंस्ट आएगा, intrigued अगेंस्ट सही, अगेंस्ट सही होगा। intrigued अगेंस्ट की मीनिंग हो जाएगी टू सीक्रेटली प्लान विद अदर पीपल टू हार्म somebody, किसी के साथ प्लान करना ताकि किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके।
अच्छा 118 है, recent events were jumbled up. सही है, सही है। सब बच्चों ने अप लिखा है। अब जम्बल्ड अप हो जाएगा। जम्बल्ड अप मीन्स टू मिक्स थिंग्स। चीजें जब जम्बल्ड अप हो जाती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही बता रहा है कि रिसेंट इवेंट्स वर जम्बल्ड अप इन हर माइंड। उसके माइंड में वो चीजें मिक्स हो गई हैं, जम्बल्ड अप हो गई विद सीन्स रिकॉल्ड फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। अच्छा 119 है हमारा। Is this the way to Lahore? Yes, just keep on till you reach Ravi Bridge. Then you will see the signs of Lahore. अब यहाँ पे देखें keep on. Keep on की मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाती है? Keep on means to continue. अच्छा आगे हमारा 120. Our elder son has been knocking the Europe for several months. अब यहाँ पे आएगा नॉकिंग अबाउट। अब जब हम नॉकिंग अबाउट मीनिंग देते हैं, नॉकिंग अबाउट मीन्स टू ट्रेवल एंड लिव इन वेरियस प्लेसेस। तो आवर एल्डर सन हैज बीन ट्रेवलिंग एंड लिविंग एट वेरियस प्लेसेस in the Europe for several months. We don't know exactly where he is or what he is doing. अब knocking about की मीनिंग क्या हो जाएगी? To travel and live in various places. सही है। अच्छा 120 है हमारा। अच्छा सॉरी 120 मिसिंग हो गया। The woman threw her coat on a chair, kicked her shoes. अब यहाँ पे हम लगाएंगे किक ऑफ। क्या लगाएंगे? किक ऑफ। ठीक है। तो जिस तरह ये है कोई चीज टू रिमूव समथिंग बाय किकिंग, के लात मार देना। ठीक है, तो उसने अपने शूज को ऐसे she kicked so that the shoes went away. So kick off हो जाएगा। जैसे हम अच्छा इसकी एक और भी मीनिंग होती है। जैसे हम टेक ऑफ यूज करते हैं, टेक ऑफ बिगिनिंग की मीनिंग देता है। तो यहाँ पे किक ऑफ मीनिंग होगी टू रिमूव समथिंग बाय किकिंग। एक और किक ऑफ होता है कि किसी को बाल को किक ऑफ करना, टू हिट द बाल। जैसे वो गेम में फुटबॉल में खेलते हैं या सॉकर में होता है। सही है। अब आगे चलते हैं 122। द ड्राइवर वॉज नॉक्ड आउट। अब नॉक आउट का मीनिंग है टू मेक समबडी, टू मेक समबडी अनकॉन्शियस। नॉक्ड आउट का मीनिंग क्या होगी? टू मेक समबडी अनकॉन्शियस। यस 121 में है नॉकिंग अबाउट। सो नॉकिंग अबाउट की मीनिंग होगी, 121 की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक मैसेज आया था। उसकी नॉकिंग अबाउट की मीनिंग होगी टू ट्रैवल एंड लिव इन वेरियस प्लेसेस। अच्छा फिर नॉक अबाउट की मीनिंग होगी टू मेक समबडी अनकॉन्शियस। सो नॉक, नॉक आउट होगा। नॉक 122 हो जाएगा। द ड्राइवर वॉज नॉक्ड आउट। फिर है 123। The editor labored over the manuscript till early morning. Labor over की meaning हो जाती है to put in a lot of time and efforts, hard work. ठीक है। तो labored over यहाँ पे सही है, जिसकी meaning हो जाएगी to put a lot of time and
energy and efforts. अच्छा, फिर जो कह रहे हैं लेबर इंटू है, उसकी आप मीनिंग चेक कीजिएगा कि क्या है लेबर इंटू। अच्छा, 124 है हमारा। इट सीम्ड दैट ही वाज गोइंग टू लैश आउट डैश हर बट ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ। सो लैश आउट इट, ठीक है। लैश आउट का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, टू हिट और किक आउट somebody or something। lash out it, to hit or kick out somebody। So it seemed that he was going to kick her or hit her, but he controlled। 125, if he offered me a small part in his production, I would leap the chance। I would leap the chance, leap at the chance। leap at the means है to take eagerly, शौक से कोई चीज लेना। leap at, ठीक है। The decoration can be left for another day। यहाँ पे होगा left up। left up, yes, left up सही है। तो left up की मीनिंग होगी to allow something to remain in the same position। leap at होता है, leap at। leap at means to take something eagerly, शौक से कोई चीज लेना। 127 है हमारा। ठीक है, 127 है, I'll be lenient this time but you won't be left again। so left off सही है। उज़मा, उरूज, सिराज, सही। लेफ्ट ऑफ, तो लेफ्ट ऑफ की मींस वो लीविंग का सेंस है कि आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। who let dash the details of the reshuffle in the department। 128 है हमारा। so who let out, who let out का मकसद है yes, let out means to utter a sound or to cry, to speak, to say something। if you won't level with me we are not going to get anywhere। अब यहाँ पे level with की जो मीनिंग होगी वो होगी स्पीक ऑनेस्टली। लेवल विद मीनिंग यहाँ पे आएगी स्पीक ऑनेस्टली। इफ यू डू नो, इफ यू वांट स्पीक ऑनेस्टली विद मी we are not going to go anywhere। he always limbered in before his afternoon match। अब limber in की मीनिंग, limbered in की मीनिंग क्या होती है कि to be very agile, active। आफ्टरनून मैच के शुरू से पहले, मैच से पहले वो हमेशा एजाइल रहता है, एक्टिव रहता है, चुस्त होता है। ठीक है, लिम्बर्ड इन। टुडे these practices are no more but their memories linger on। ओके, लिंगर ऑन की मीनिंग क्या हो जाती है, टू रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लिंगर ऑन मीन्स समथिंग रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। वेरी गुड उस्मा एंड उरूज, ठीक है, दोनों ने सही आंसर दिया। लिंगर ऑन। नेक्स्ट है आई विश यू वुड स्टॉप लिसनिंग डैश टू माय प्राइवेट कन्वर्सेशन। अब
लिसनिंग इन का मकसद होता है टू लिसन अ प्राइवेट कन्वर्सेशन. लिसन इन मीन्स to listen private conversation. You have lost all your money. Now you must learn to live dash the situation. To live to live with the situation. अब यहाँ पे live with होता है to accept और to tolerate something unpleasant. जो भी situation है उसके साथ आपने रहना है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा 134. We cannot live dash our moral pretension. We cannot live upon. Live upon की मीनिंग हो जाती है fulfill expectation. Live upon means fulfill expectation. 133 है live with and live upon. Fulfill expectation. Live upon means. 135 is a formal complaint is being lodged dash the police inspector. यहाँ पे होगा lodged अब तो किस पे बताया था? live up to नहीं उरूज कौन से 134 में? तो 134 में मैंने भी तो यही बताया ना. we cannot live up to our moral expectation and live up to की मीनिंग है fulfill expectation. यस यही मैंने भी यही बताया fulfill our expectation. live up to है 134. सही 134 का ए सही है. चले 135 हो गया. अच्छा 135 है हमारा. A formal complaint is being lodged with the police inspector. So lodged with लेगा. lodged with की मीनिंग क्या हो जाएगी? To make a formal statement about something to authority. कि कोई भी आप कोई स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं या उनको बता रहे हैं अथॉरिटी को, तो यहाँ पे हो जाएगा lodged with the police inspector. It is a bleak look dash for anyone hoping for quick profit. तो 136 का हो जाएगा look out. So look out की यहाँ पे मीनिंग हो जाती है be vigilant. लुक आउट ये सुरूज सही है. उस्मा सही है. गुरु लुक आउट. 137 है हमारा. हर लेटर्स betray of desperate desire not to lose touch dash her beloved. So lose touch with. Okay. So touch with का मकसद है to remain in contact. Okay. Yes, सबने सही लिखा है touch with. फातिमा, अरीज, उरूज, नीलेश, उस्मा, हिना सही है भाई. सबका सही. ये सराबता रहन हाँ सही है. टच विद. 138 है हमारा. आई हैव हर्ड मेनी स्टोरीज ऑफ ब्राइट यंग रिसर्च वर्कर बीइंग lured away only to find their position change for the work. अब
lured away, lure away की मीनिंग क्या हो जाती है? To attract someone or something away. Lure away means to attract someone or something away. सही है, lured away, ठीक है भाई, सही है, वेरी गुड। तो lured क्या हो जाएगा? Lured away means to attract someone or something. अच्छा, मीनिंग रिपीट कर रहा हूँ। lured away means to attract someone or something away. अगला वर्ड है हमारा she was marked dash by a fiery temper and a strain of intolerance. So she was marked of of अब आएगा mark of का मीनिंग है to show someone something has a particular quality or somebody has a particular quality or somebody is very uh, is full of qualities. So mark of सिंगल एफ लगाना है, मार्क ऑफ। He was keen enough but he simply did not match dash the demands of the job. So match up to का मीनिंग है फिटिंग पर्सन और फिटिंग थिंग। मैच अप टू मीन्स फिटिंग पर्सन के he was keen enough but he simply did not match up to means simply he did not fit up to the demands of the job. He is not suitable according to the demands of the job. Yes, 139 का OF होगा of. A option is correct. 139 A is correct. So mark of मैंने बताया, mark of की meaning क्या हो जाती है? To show someone or something has a particular quality. चले अब 141 पे हम आ जाते हैं। ठीक है, 150 तक करेंगे हम। नहीं, थोड़ा सा हौसला और कंट्रोल करें। चले, somebody has been meddling the photographs I laid down so carefully. अब meddling up होगा। meddling up मीनिंग होगी to interest oneself in what is not one's concern। ठीक है, meddle up, meddle up, ओके, कि आपका कंसर्न ही नहीं है, आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या उनमें जो है आप मुदाखलत कर रहे हैं। 142 है हमारा I would take someone with the wisdom of Solomon to mediate with these two. Both are uttering convinced they are in the right. अब mediate with लेता है। mediate with means mediate with की meaning क्या हो जाएगी? To intervene in a dispute to bring about an agreement. Okay? कि किसी के बीच में जाना और उनका जो भी टसल है या प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना। मीडिएटर लोग होते हैं तो मीडिएट विद, मीडिएट बिटवीन आएगा। बिटवीन, मीडिएट बिटवीन, सॉरी, मीडिएट बिटवीन। 142 में क्या आएगा? मीडिएट बिटवीन। तो ए ऑप्शन सही है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अमंग नहीं हो सकता। अगर देखें बिटवीन और अमंग का यूजेज आपको शुरू में मैंने बताया था कि दो चीजें हों या दो लोग हों तो बिटवीन हम यूज करते हैं और दो से ज्यादा हों तो हम अमंग यूज करते हैं। ये आप माइंड में, ज़हन में रख लेंगे।
ठीक है, सही है। मोर देन टू हो तो अमंग, अगर दो हो तो बिटवीन। तो यहाँ पे 142 में बिटवीन है, मीडिएट बिटवीन। यहाँ पे दो हैं, दीज टू, तो हमने बिटवीन लगाना है। अगर ज्यादा हो तो फिर अमंग हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, as a bright young recruit, he was moved dash from our department to author or gain experience. अब moved around आएगा। moved around की मीनिंग क्या होगी? To travel from place to place, एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहा है ताकि वो क्या एक्सपीरियंस हासिल कर सके। तो मूव अराउंड आ जाएगा, मूव अराउंड, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। मूव अवे नहीं होता, मूव अवे तो सेंस देगा कि वो छोड़ रहा है, लीविंग कर रहा है। मूव अराउंड का है कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है टू गेट एक्सपीरियंस। मूव अवे तो वो फिर छोड़ जाता है वहां से, लेकिन एक जगह से, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट जा रहा है या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, तो हम मूव अराउंड कर देंगे। We are moving dash to new examination system. So we are moving over. Moving over की meaning हो जाएगी to change your position in order to make space for someone or something else. Move over. Move around में है कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। मूव अवे होता है लीव टू लीव, और मूव ओवर होगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। पहली जगह आप इसीलिए छोड़ रहे हैं ताकि आ, कोई नया से कोई जो है ना कोई दूसरा आ जाए। ठीक है, अगला है हमारा 145। द रीजन इज नोटेड डैश इट्स कैटर। सो नोटेड फॉर की मीनिंग हो जाएगी वेल नोन। वेल नोन मीन्स फेमस, इसीलिए यहाँ पे ये आ जाएगा नोटेड फॉर। नोटेड फॉर मीन्स famous or well known. He is totally opposed dash any change in the existing law. 146 हो जाएगा, he is opposed to। opposed to की meaning है हो जाती है disagree। So he is totally disagree। opposed to means disagree। yes। 147 आएगा, जावेद was ousted dash his post is a result of maneuverings by डिपार्टमेंट राइवल्स। सो आउस्टेड फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, आउस्टेड फ्रॉम हिज पोस्ट, के उसकी जॉब थी, अब उसको वहां से निकाला गया है। तो मीनिंग आउस्टेड फ्रॉम की मीनिंग क्या हो जाएगी? टू फोर्स समबडी आउट ऑफ जॉब। उसको आप जॉब से निकालते हैं तो आउस्टेड फ्रॉम जॉब हो जाएगा। ठीक है, फोर्सफुली किसी को आप निकाल रहे हैं। अगला है हमारा ही इज नॉट इजिली पार्टेड डैश हिज मनी। सो पार्टेड फ्रॉम हो जाएगा। पार्टेड फ्रॉम की मीनिंग है लीविंग। सही, पार्टेड फ्रॉम लीविंग का सेंस देगा, तो यहाँ पे हमने फ्रॉम लगाना। ही इज नॉट इजीली पार्टेड फ्रॉम हिज मनी, के वो इजीली अपने पैसे नहीं छोड़ेगा। नहीं, पार्टेड विद, देखें पार्ट पार्ट जो है ना वो लीविंग का सेंस देता है, तो पार्टेड फ्रॉम आएगा। ठीक है, ओके। सो 149 है हमारा, their high standards of
craftsmanship have been passed ever for generation. So passed down होगा, passed down, ठीक है। passed down की मीनिंग हो जाएगी to give or teach something to children। अब यहाँ पे जनरेशन से जनरेशन जो चीजें हमें पास हो रही है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, पास डाउन। कि कोई हम फादर्स की जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, या कोई प्रोफेशन है वो हम ले रहे हैं, तो दैट ट्रेडिशन हैज बीन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। 147 की मीनिंग है आउस्टेड फ्रॉम की मीनिंग है टू फोर्स समबडी आउट ऑफ जॉब, कि किसी को आप जॉब से फोर्सफुली निकालते हैं, तो आउस्टेड फ्रॉम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी आप चलें, ये भी चेंज कर लें, पास्ड डाउन ओवर 4 जनरेशन, के 4 जनरेशन से वो चीज जो है, ये क्या था, क्राफ्ट्समैनशिप जो है ना, 4 जनरेशन से वो आती जा रही है, तो ये पास्ड डाउन ओवर कर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, लास्ट है all this anger that spent dish inside him has to break out from time to time। so ये आ जाएगा all this anger that spent up। so pent up की मीनिंग क्या हो जाती है, feelings that cannot be expressed। pent up means feelings that cannot be expressed। Challenge. The first one is there were over 1,000 people at the concert. So first one is over. Second one is you must be over 18 in order to see the film. We are traveling on the road. He is suffering from an unknown illness. I listen to the game on the radio. How are you getting on at school? Don't be impatient with us. We are trying. Could I speak to Tom, please? We didn't see the whole performance because we left before the last act. There were some beautiful pictures on the walls. The march started in the park. From there, we moved to City Hall. Pessimism is bad for your health. He asked his mother for money. I bought many things during my stay in New York. My country is famous for historical sites. I'm not in a hurry. I can wait. Have you ever been to the theater recently? We arrived at the airport in time for the plane. My grandfather died of cancer. The resort lies about 1,500 meters above sea level. His hands are in front of his face. There is a chair behind my desk. The thief jumped out of the window. Both of my neighbors can take care of the cat while you are gone. I really think about the weather. They were always arguing about silly things. At first, I found the work very tiring, but after a few weeks, I got used to it. My house is at the end of the road. The article was in yesterday's paper. The classroom is on the 4th floor. I applied for a few jobs last week, but nobody wrote back.
He wants 2 seats for the concert on Friday night. I ought to be ashamed of yourself. Sorry, you ought to be ashamed of yourself for coming in with dirty boots. There is no point in going by car if we can park near the theater. He started his training in November. Whom did they vote for? The bus stopped at the corner of High Street and Congress Avenue. I love listening to classical music. He is from Dallas, Texas, but he was born in California. He goes to church every Sunday at 7 a.m. We need to leave for work at once or else we will miss the bus. I asked the policeman for some information. The great player hit the ball over the net. Can you find our holiday beach on the map? Please turn down the volume of the radio. I'm getting deaf. So 45 हो गए. अब इसमें आपने चेक करना है कि आपके करेक्ट कितने हैं, तो आप मैसेज में भेज सकते हैं. You have 2 minutes to count and then share it.